I'm going to share things that nobody tells you when you are living alone. This could be a little bit controversial. I'm not crying, just that चीज के पैसे लगते हैं जो आप जब घर में रह रहे होते हो तो दिमाग भी नहीं जाता उस पे. घर में कुकिंग करना एंड फ्लैट में कुकिंग करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट. Everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. This video is going to be everything that you need to know if you are going to live alone or you're already living alone and you just want somebody to relate to. If you're a student who is currently living in the comfort of their home and you're about to step out for your graduation or your post-graduation, or it could be office as well, if you're somebody who's going to leave your home, this video is for you because I'm going to share things that nobody tells you when you are living alone as a student. And if you think कि मैं यहाँ पर ये ज्ञान क्यों झाड़ रही हूँ, for that credibility, let me tell you that I have now lived all sorts of student lives that one possibly can. I hope you already know that I am an MBA student and currently it's the last month going on. I started my journey as a day scholar. मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ, मेरा कॉलेज साउथ दिल्ली में है, so ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है. So I started my journey as a day scholar and once I realized that things are getting tougher, I shifted to a hostel and I spent 2 trimesters as a hostel student. After that, for the 4th, 5th and 6th trimester, I lived in a flat independently. Hostel में still in a pampered environment. So in the 4th, 5th and 6th trimester, I have lived in a flat. And flat maybe after that, for the last trimester, a roommate moved in with me. And now as I'm shooting this, it's 3rd of March today. It's the last month of our college and I have moved back home. Now I'm a day scholar again. My MBA life has come back to a full circle. जैसे शुरू करी थी वैसे ही खत्म हो रही है and वो सारा 2 साल का experience लेकर I've come to make this video. If you're somebody who's scared to move out just like I was when I filmed this video, make sure to watch this video till the end. There are 2 main reasons why I'm filming this video. First is to help students like you who are too scared to move out. Secondly, I have closed a big chapter of my life now. I have moved back home and I don't think I will move out again for my job. It's going to be hybrid most of the time, so I don't need to move out for job purposes. Next that I can see myself moving out is hopefully to my own studio. हो जाए but God forbid वो नहीं हो तो उसके बाद शादी के लिए move out होगा. So I have closed a big chapter of my life and just like everything that I put out, I want to put these feelings out to just summarize it and then come back to it whenever I want to. मेरे पेट में कुछ पछता नहीं है, वो feeling share किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता, so that was another reason. Let's move into the video, but before that, if you're seeing this space for the very first time, hi, I'm Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel if you haven't already. I'm sure I'll have a great time here. Hit that bell icon as well so that every time I upload a video, you get notified. And now without any further ado, let's get into the video. Living alone definitely sounds like a dream. कोई कर्फ्यू नहीं है, कभी भी आओ, कभी भी जाओ. So it sounds very exciting, but here are things that no one prepares you for. The first thing that I can think about is obviously the freedom that is so unmatched. ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा बांध के रखते हैं, दबा के रखते हैं, कहीं जाने नहीं देते, बट स्टिल एज अ डे स्कॉलर मैं अपना कॉलेज बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाती थी क्योंकि कॉलेज खत्म होते हैं लगता था घर भागो, खत्म होने के बाद कहीं बाहर जाओगे, उसके बाद घर पहुंचोगे बहुत लेट हो जाएगा. सेफ्टी रीजंस की वजह से भी आई वॉज नॉट एबल टू एंजॉय माई कॉलेज लाइफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. But when I shifted to the hostel in the second trimester, time that was the most exciting was classes खत्म होने के बाद. I had the time to network, I had the time to participate in college activities. Friends के साथ घूमने निकल जाती थी और शाम को सेफ टाइम पे 7-8 बजे तक हॉस्टल पहुंच भी जाती थी. So जब आप अकेले रहोगे तो आप अपने स्केड्यूल पे चल सकते हो. फ्लैट में एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं अपने हिसाब से अपने टाइमलाइन के हिसाब से कर सकती हूँ. सो दैट वाज अ प्लस. एक और चीज भी है कि आप जैसे मर्जी डेकोरेट कर सकते हो अपनी स्पेस को एंड आई वॉज टू लेजी टू डू दैट. ना मैंने हॉस्टल में किया ना मैंने फ्लैट में किया, बट आप एस्थेटिकली जैसे मर्जी डेकोरेट कर सकते हो उस रूम को. इट्स लाइक योर ओन लिटिल स्पेस. फ्रीडम इज डेफिनेटली अनमैच्ड. हाउएवर, कुकिंग फॉर योरसेल्फ इज डेफिनेटली हार्डर देन यू थिंक. आप मानोगे नहीं, मैं अपने से फ्लैट पर इतना सारा राशन का सामान, इतने सारे बर्तन, इतना कुछ लेके गई थी एंड अब मैं 8 महीनों बाद वापस आई हूँ तो ऑलमोस्ट 50% राशन की चीजें एज इट इज वापस आई है. मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके गई थी, मैं ये बनाऊंगी, मैं वो बनाऊंगी, मैं अलग अलग सॉसेस वाले पास्तास बनाऊंगी एवरी डे, मैं हाई प्रोटीन मील्स बनाऊंगी अपने, ये करूंगी वो करूंगी. एज कम्पेयर टू माई एक्सपेक्टेशंस मैंने उसका 50% भी नहीं बनाया होगा. ऐसा नहीं कि मैंने खाना बिल्कुल नहीं बनाया, बट आई स्टक टू 3-4 इजी थिंग्स एंड वही पकड़ पकड़ के उसी को ऑन रिपीट बनाती रहती थी. एंड मैंने सोचा था कि मैं बाहर से बहुत कम खाऊंगी, लेकिन 50% घर का 50% बाहर का ऐसे ही चला है मेरा. घर में कुकिंग करना एंड फ्लैट में कुकिंग करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट. बिकॉज घर में पहली बात
बाद तो बर्तन धोने का नहीं सोचना पड़ता, जितने मर्जी बर्तन यूज करो। सामान चाहिए या तो पहले से पड़ा होता है, या मम्मी सामान क्या क्या चाहिए वो चीज बनाने के लिए, वो भी मम्मी का डिपार्टमेंट है, वो भी नहीं सोचना। सब्जी की चॉपिंग मम्मी करके दे देगी या मेड करके दे देगी, एंड देन एंड में वाइंड अप मैंने नहीं किया तो मम्मी कर देगी। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट जब आपको फ्रॉम स्क्रैच अकेले एक मील बनाना है, तो स्क्रैच से मैं सोचूं, मैं देखूं क्या सामान है, नहीं है, मैं सामान अरेंज करूं। सब्जी छीलना भी इतना बड़ा टास्क लगता है, फिर उसको काटूं, फिर बनाऊं, फिर 36 बर्तन हो जाते हैं, फिर वो भी मेरी जिम्मेदारी। ओह गॉड, इट गॉट टू मच। एंड साथ में कॉलेज का काम भी तो होता था, मेरा यूट्यूब का काम भी होता था। चीज ध्यान रखने वाली है। अगर आप कुक हायर कर रहे हो तो चलो दैट्स बेटर, बट मैंने कुक हायर नहीं करी थी जस्ट बिकॉज हमारा शेड्यूल बहुत इरेगुलर रहता था एंड मुझे खुद को खाना बनाना आता है। सो टिप्स दैट हेल्प मी इज मील प्रेपिंग। मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू वाज मेकिंग ओवरनाइट ओट्स। एफर्टलेस ब्रेकफास्ट, एफर्टलेस हेल्दी मील, एटलीस्ट एक हेल्दी मील तो मेरा रोज हो ही जाता था। मैं ओवरनाइट ओट्स बना कर रखती थी। नथिंग मच, जस्ट ओट्स, चिया सीड्स, मिल्क, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए और डेट्स डाल दी, तो उससे मीठा भी हो जाता था। एंड उसके ऊपर जो भी मुझे फ्रूट कभी डालना है तो डाल दिया, नहीं डालना तो नहीं डाला। एंड थोड़ी सी म्यूसली या ग्रेनोला क्रंच के लिए डाल दिया। ओ माय गॉड, दिस वाज माय स्टेपल ब्रेकफास्ट। सिर्फ विंटर्स में 2 महीने मैंने ये छोड़ा है, उसके अलावा जुलाई से लेके अभी तक दिस हैज बीन माय स्टेपल ब्रेकफास्ट। The next thing that I think about that I learned living alone is budgeting. ऐसे निकलते हो तब आपको रियलाइज होता है कि भाई एक एक चीज के पैसे लगते हैं, क्योंकि जब घर में रह रहे होते हो तो जो आप खर्चे करते हो वो सिर्फ आपके पर्सनल खर्चे होते हैं कि फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, नायका से ऑर्डर करना है, मित्रा से ऑर्डर करना है। लेकिन जब घर चलाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, किचन की चीजें, ग्रोसरी, इवन डेली ब्रेड, फ्रूट्स, मिल्क, हर चीज के पैसे लगते हैं, जो आप जब घर में रह रहे होते हो तो दिमाग भी नहीं जाता उस पर। तो आप एक बजटिंग करना सीख जाते हो। मम्मी पापा को शायद ही नहीं लगता होगा, बट आई हैव स्पेंट वेरी वाइसली व्हेन आई वाज देयर, क्योंकि लाइक आई न्यू वेयर टू स्पेंड। जो पॉकेट मनी मिलेगी, मुझे जोमेटो का फूड ऑर्डर भी उसी में से करना है, मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का भी उसी में रखना है, मुझे ग्रोसरी भी उसी में से लेनी है। मैं अपने मम्मी पापा से कभी भी मांग सकती थी, बट स्टिल आई ट्राइड कि जितना वो दे रहे उतने में मैनेज कर लूं, मेरे को एक्सेस ना जाना पड़े। दैट्स वन स्किल दैट यू विल लर्न। द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज अबाउट लिविंग अलोन। आई थिंक दैट सॉलिट्यूड फैक्टर दैट कम्स विद इट। आप अकेले रह रहे हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, तो कब वो सॉलिट्यूड लगता है और कब वो लोनलीनेस लगती है। मोस्टली आई यूज्ड टू हैव सम ऑफ द अदर फ्रेंड कम ओवर, बट जब वो नहीं हो पाता था, कितनी बार तो ऐसे रात को मुझे लगता था कि भाई मेरा अकेले मन ही नहीं लगता। इवन तो मैं अपने घर पे भी आती थी तो अपने कमरे में ही अकेले पड़ी रहती थी। दिमाग में ये तो पता होता था कि घर में और 4 लोग हैं। कभी कभी अच्छा लगता था अकेले रहना, मैं अपना अकेले नाचूं, गाऊं, सीरीज देखूं, मैगी खाऊं, जो मर्जी करूं। There are days when silence feels peaceful, but yeah, there are also days when that silence feels very isolating. And thank God that I have this thing that I'm working on content, because चाहे हॉस्टल हो चाहे फ्लैट हो, एडिटिंग मुझे इतना ऑक्यूपाइड रखता है कि मेरा ज्यादा ध्यान नहीं रहता कि मेरे आसपास कोई है कि नहीं। अगर मैं तो कितनी बार सोचती हूँ, अगर मेरे जीवन में यूट्यूब ना होता तो मैं अपने टाइम के साथ क्या कर रही होती। प्रोडक्टिविटी पर डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। आप अकेले हो तो आपके पास एम्पल टाइम है पूरा दिन, क्योंकि कोई बात करने के लिए नहीं है आसपास। घर पे तो कितनी बार घर वालों के साथ ही टाइम निकल जाता था, पता नहीं लगता। उस फुल टाइम को कैसे यूज करना, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो टाइम आप पूरा का पूरा वेस्ट कर दोगे। स्पेशली बिंज वॉचिंग एंड बिंज स्क्रॉलिंग के जमाने में तो प्रोडक्टिविटी लाना बहुत मुश्किल है। सो आपको अपने आप को थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। मोटिवेशन इज डेफिनेटली अ स्ट्रगल व्हेन यू आर अलोन, बिकॉज सर पे कोई है नहीं बोलने वाला, जो मर्जी कर लो, कब पढ़ते पढ़ते फोन खुल जाता है पता नहीं लगता। एंड घर पे ऐसा होता है तो मम्मी सर पे होती है। हॉस्टल में तो श्वेता वाज माय रूममेट, सो हॉस्टल में तो वो मुझे कितनी बार टोक देती थी कि भाई पढ़ ले। लेकिन जब मैं अकेली रह रही होती थी तो कितनी बार ऐसे होता था कि भाई एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने बैठी और तब भी ढीठों की तरह फोन चला रही और कोई है ही नहीं आसपास टोकने को। बट ऐसा होता था कि क्योंकि अकेले हो तो नींद ही नहीं खुलती। बाहर ऐसे होता था कि मेरी अगर 10-20 की क्लास है तो मेरी 10 बजे आँख खुलती थी, अगर मेरी सुबह 8:30 की क्लास है तो मेरी 8:10 पे आँख खुलती थी। पता नहीं क्यों हमेशा 20 मिनट पहले आँख खुलती थी। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बुरा है, एंड दैट इज फॉलिंग सिक अलोन। There's nothing worse than falling sick alone. I've had period cramps when I was alone. I've had bad cold and fever when I was alone. I have coughed my lungs out when I was alone. अपने लिए उठ के खाना प्रिपेयर करना, क्योंकि ऐसे टाइम में तो बाहर का भी नहीं खा सकते। That is the worst feeling ever when you have nobody around you to take care of you. And when I realized this the most is that बीच में एक टाइम था मुझे बहुत गंदी खांसी लगी हुई थी।
फ्लैट में तो मैं नींद में ही खांसती रहती थी, उठती ही नहीं थी कि भाई कौन ही उठे, थोड़े देर में बंद हो ही जाएगी। लेकिन एक बार मैं ऐसे वीकेंड पे घर आई, नींद में खांस रही थी उस टाइम पर, बट आई डोंट नो समहाउ उनको मेरी आवाज आ गई खांसने की एंड मेरी आंख खुली, मेरी आंखों के आगे गर्म पानी पड़ा हुआ, आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और उनको मेरी आवाज आ गई, वो स्पेशली मेरे लिए नींद से उठी, उन्होंने पानी गर्म करके मेरे आगे रखा एंड फ्लैट पे तो मैं सोचती ही रह जाती या सोचते सोचते सुबह हो जाती, बट मैंने यहाँ पे आंखें खोली और मेरे आगे पानी हाजिर था। लाइक दिस इज व्हाट आई मिस्ड एट माय फ्लैट एंड व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव एक्चुअली ग्रोन अप वाज, एक बार मैंने खुद से बेसन का शीरा बनाया था जो कि घर में मम्मी बना के देती है व्हेन आई हैड अ बैड कोल्ड। ऐसे टाइम को थोड़ा बेटर बनाने के लिए अपना एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स बनाकर जाना ही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं किया था एंड उस टाइम पर जब आपको प्रॉब्लम हो रही थी तब दवाइयाँ हंट करना, इट इज अ पैथेटिक सिचुएशन। सो मेक श्योर कि आपका एक बॉक्स रेडी है जिसमें आप लाइक फीवर की दवाई, खांसी के लिए सिरप, विक्स की गोली, कोल्ड के लिए दवाई, हेडेक के लिए दवाई, इनो। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे इनो की जरूरत पड़ी और इनो पड़ी नहीं थी फ्लैट पे, वॉलिनी, बैंडेड, टचवुड मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की, बट होनी चाहिए अपने पास। श्योर टू कीप दिस फर्स्ट एड बॉक्स रेडी बिकॉज उस टाइम पे कोई आपके लिए भागा दौड़ी करके लाने के लिए नहीं होगा। When you move out of the house, you grow up faster than you expected. You are solely responsible for manage everything from cooking to cleaning your apartment. Even though आपने मेड भी लगा रखी है, मेड से काम करवाना भी कोई इजी नहीं होता, वो भी आपको खुद ही मैनेज करना होता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल योर बिल्स, टाइम मैनेजमेंट। आई नॉट लाइक कि मैंने रिग्रेट नहीं किया शिफ्ट होना, लेकिन वो जैसे ही रिग्रेट वाली फीलिंग आती है इंस्टेंटली वो वाली फीलिंग में आ जाती है कि जो पॉजिटिव्स है बाहर रहने के, जो चीजें मैं सीख रही हूँ अभी, अगर मुझे करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, एट द बैक ऑफ माई माइंड थिंग्स आर गेटिंग रजिस्टर्ड ऑल्सो, कि जब आप अपना घर खुद चलाते हो जो कि कभी ना कभी फ्यूचर में तो मुझे चलाना ही है, तब एकदम से इंडिपेंडेंस नहीं थोप दी जाएगी मेरे पे, तब मेरे लिए चीजें मैनेज करना ईजियर होगा क्योंकि मैं ये मिनी लेवल पे मैनेज करके गई हूँ। इट फील्स स्कैरी एट फर्स्ट बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग दोज थिंग्स डन यू ऑल्सो फील इंडिपेंडेंट एंड दैट्स अ नाइस फीलिंग। अगर आप डर रहे हो मूव आउट करने से तो ट्रस्ट मी, यू हैव नथिंग टू लूज बिकॉज फ्रीडम एंड ऑल के एडवांटेजेस तो आपको पता ही है। एक एडवांटेज मैं और मेंशन करना भूल गई थी, स्लीप ओवर्स एनी टाइम यू वांट। मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स के फ्लैट पर आके स्लीप ओवर करती थी, कभी भी मेरे फ्रेंड्स मेरे फ्लैट पे आके स्लीप ओवर करते थे। अभी सिर्फ एक ही होती थी, कभी कभी मेरी पूरी कॉलेज की गर्ल गैंग आ जाती थी एंड वी हैव हैड गर्ल्स नाइट एट माय फ्लैट। यू विल गेट टू एंजॉय ऑल दोज पॉजिटिव थिंग्स एंड साइमल्टेनियसली यू विल लर्न हाउ टू हैंडल स्टफ। इवन दो अब मैं घर वापस आके मैं फिर पापा की परी की तरह रह रही हूँ, मैं इतना कुछ नहीं करती, आई हेल्प माई मॉम आउट इन द किचन बट मैनेजमेंट वगैरह मैं कुछ नहीं करती, बट सिंस आई हैव डन दैट आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर एंड दीज आर लाइफ स्किल्स। मैं वोंट लाइक, जब मेरी सुबह सुबह की क्लास नहीं होती थी तो उठते ही प्रेपिंग माई कॉफी एंड अपने ब्रेकफास्ट के साथ लैपटॉप के आगे बैठ के दैट स्लो मॉर्निंग शांति वाली, आई यूज्ड टू लव इट। डेफिनेटली चैलेंजिंग बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ग्रो एंड विद अ हेवी हार्ट आई हैव क्लोज दैट चैप्टर नाउ। इक्वली हैप्पी टू मूव बैक टू माई पेरेंट्स प्लेस एज वेल। कई लोगों को ये मौका नहीं मिलता, एक बार वो बाहर निकल जाते हैं तो उनको बाहर ही रहना पड़ता है। स्पेंडिंग मोर टाइम विद माई फैमिली एंड आई हैव ऑल्सो रियलाइज वापस आके कि मैंने वहां पर क्या चीजें मिस आउट करी है। आई एम नॉट क्राइंग, मेरे लेंस मुझे इरिटेट कर रहा है बस अभी। So there are lot of things जो मैंने घर पे मिस आउट करी है। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जब हम चारों पांचों इकट्ठा बैठ के बातें करते हैं, मम्मा के साथ बातें करना, मम्मा के साथ मिलके खाना बनाना, भाई भाभी के साथ बैठ के टीवी देखना, वो सब चीजें जो मैंने मिस आउट कर दी थी। एंड एक टाइम पर तो ये घर मेरा छूटना ही है, कभी ना कभी तो मेरी शादी होनी है। ये सब चीजें मेरी जो टाइम से पहले छूट गई थी, I have got all that back, so I'm equally happy to move back as well. That was all about my living alone experience. I'm already बाहर हो तो I hope you related with my content and you feel that maybe you're alone in this house but you're not alone in this boat. There are other people who go through just the similar problems like you, and if you're somebody who is scared to do this, प्लीज टेक दिस वीडियो एज अ साइन। एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एक बार अपने घर से अलग होकर इंडिपेंडेंटली जरूर रहो। एंड आई फील दिस इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स टू डू। दिस कुड बी अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, दिस नॉट रियली कंट्रोवर्शियल तो हैवी वर्ड हो गया, दिस मे बी परसीव्ड नेगेटिवली, बट एकदम ही जब आप अपने फैमिली के घर से अपने इन लॉज के घर में जाओगे इन फ्यूचर तो आपके लिए तब बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो जाएगा। शादी के बाद मेजरली ऐसा होता है कि यू आर एक्सपेक्टेड दैट यू आर वेरी वेल फेमिलियर विद एडल्टिंग, वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर होती हैं। घर पे तो आप पापा की परी की तरह बन के रहते हो तो आपको एकदम से झटका लगता है। उस टाइम पे आप ऑलरेडी न्यू लाइफ के साथ एडजस्ट कर रहे होगे, तब आपके ऊपर एडल्टिंग वाला वो प्रेशर नहीं होगा क्योंकि यहाँ से आप वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हो।
ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो टाइम ही बताएगा कि वो ट्रांजिशन कैसी रहेगी. Anyway, that was it for today's video. I hope you liked this video, and if you have ever lived alone, what were your experiences? ऐसा क्या अलग था जो मैंने इस वीडियो में नहीं बोला? Anything you want to share, make sure to leave it in the comments. You have heard all my stories and I would love to read all your stories as well. So make sure to like this video, leave a comment down below, subscribe to my channel if you haven't already, and if you have any other video idea that you want me to do, make sure to leave it in the comments. I'll happily do it. And with that, I'll see you guys next time. Bye bye.